dear session. Today we will discuss a new chapter that is called your standard costing. इसे बोल लिखो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप लोग पहले भी बहुत चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का कर चुके हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए होल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर माय पॉइंट? Cost accounting as a whole it is divided into 3 parts. So cost account it is divided into 3 parts. अगर हम बात करें ये 3 पार्ट में ही कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो पहला पार्ट है कॉस्ट असाइनमेंट। कॉस्ट असाइनमेंट मतलब जो खर्चा हो चुका है उसको लेते हुए हम लोग जो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट असाइनमेंट। क्लियर? दूसरा जो है डिसीजन मेकिंग। सेकंड जो है ये डिसीजंस मेकिंग है। एंड थर्ड वन इज कॉस्ट कंट्रोल। अगर ये 3 चीज को हम लेते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। सो कॉस्ट अकाउंट एज ए होल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉस्ट असाइनमेंट, देन सेकंड इज योर डिसीजंस मेकिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। सो दीज आर द 3 techniques of cost accounting. The technique of cost accounting. अगर ये 3 चीज अंडर कॉस्ट असाइनमेंट में you will find your process costing, job costing, batch costing, clear my point? Process costing, job costing, batch costing, then other service sector costing, So under your cost assignment you will find process costing, job costing, batch costing and service costing. Of course contract costing is also there. Contract costing, all are comes under your cost assignment. This is the basic of your accounting. And second, in case of decision making, marginal costing, आप लोग लिख लो ताकि आपको समझने में इजी होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग,
relevant costing, and third one is differential costing. Differential costing. Remember, these three areas comes under your decisions making process. As you know, the most important factor in case of management to take various decisions related to your cost. Now, under your cost control, you will find budgetary control, and standard costing. Clear my point? Under cost control, you will find two things, that is budgetary control and standard costing. Budgetary control and standard costing. So we are related with the standard costing. So standard costing, it is a part of your cost control. Standard costing, it is a part of your cost control. But your marginal costing, it is a part of your decisions making. जो कि हम कर चुके हैं marginal costing. Marginal costing, it is a part of your decisions making process. But your standard costing, it is a part of your cost control. Clear my point? So costing as a whole, it is ये तीन चीज अगर हम ले जाते हैं तो costing यहाँ खत्म हो जाता है. Clear my point? Now another important factors question is arises. Now what is standard costing? What is standard costing? Please write down. प्लीज राइट डाउन. आप लोग लिखिए. व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट डाउन. स्टैंडर्ड कॉस्ट is the predetermined cost based on technical estimate for material, labor and overhead for a selected period of time. For a selected period of time. Clear my point? So standard costing, this is nothing but it is a predetermined cost which is determined earlier. Clear my point? What sort of cost is determined earlier? The cost of material. As you know, there are three elements of cost: the material, labor, and your overhead. Now, question is arises: what is the difference between budget and standard costing? You will find budget is prepared by taking historical cost into the account. Out of our experience, out of our past experience, you will take historical cost, recorded data, and again you will prepare your budget. So that's why it is very difficult to fix responsibility towards the employee. जैसे मान लीजिए
हम लोग बजट में लिखे हैं मटेरियल कॉस्ट 50 रुपया बजटेड फिगर, लेकिन एक्चुअल है ये 60 रुपया ना। नहीं तो मटेरियल परचेज कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट ही करता है। क्लियर? अगर मटेरियल हम लोग बजट में 50 रुपया है और एक्चुअल में 60 रुपया है, कैन यू मेक क्वेश्चंस टू द परचेज डिपार्टमेंट कि आप भाई क्यों 60 रुपया दिए? हम लोग नहीं पूछ सकते। क्यों? मटेरियल प्राइस कभी 50 होता है, कभी 60 होता है, कभी 70 होता है, और ये हम जो डाटा बजट बनाए हैं ये पास्ट डाटा को लेके बनाए हैं 50 रुपया, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी का भी नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बजट से 1% ज्यादा है। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यू विल फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। भाई क्यों 60 रुपया हुआ, क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आंसर देगा किसके कारण मटेरियल प्राइस बढ़ गया कि सप्लाई ऑफ मटेरियल मार्केट में कम है, तो आंसर मिलेगा। लेकिन बजट में हम लोग कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप नहीं कर पाते, जिसके कारण हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना पड़ता है टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू कंट्रोल द कॉस्ट। क्लियर माय पॉइंट? सो दैट इज द डिफरेंस। बोथ आर predetermined data. Budget is also predetermined data. Standard cost is also predetermined data. But difference is that budget is prepared by taking historical cost into the account. The past recorded data is taken into the account and budget is prepared, and there is no question of fixation of responsibility in case of budget. That's why we are again apply the technique of your standard costing. Clear my point? So cost accounting as a whole, if you divide, then it is divided into 3 parts. First is your cost ascertainment, then your decisions making, then your cost control. And standard costing is comes under your cost control. Clear my point? It is a part of cost control. Now we will discuss. You will find what is the main object and you may say main function of your accounting. You will find in this case you will find your sales and cost, profit, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। What is the object of the business? The main object of business to earn profit, to earn profit, and the primary function of business is sales and cost, sales and your cost. Clear my point? Now question is arises, if sales is increased, definitely your profit is also increased, because the equation says that profit is equal to sales minus cost, sales minus cost. Clear my point? If sales is increased, definitely your profit will also increase. If cost is increased, definitely profit is decreased.
Clear my point? So in case of standard costing, you will fix up the standard. You will fix up the standard so that sales, profit and cost must be maintained effectively. So business will earn much more profit. So in this case, profit is equal to sales minus cost. So if sales is increased, profit is increased. If cost is increased, profit is decreased. अगर profit decrease होगा, तो आपको क्वेश्चन होगा, profit क्यों decrease हुआ? प्रॉब्लम कहाँ पे है? Either प्रॉब्लम सेल्स में हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम कॉस्ट में हो सकता है। ये दो ही जगह है जहां प्रॉब्लम आप लोग को आने वाला है। अगर सेल्स घट गया होगा तो भी प्रॉफिट घटा है, कॉस्ट बढ़ गया होगा तो भी प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग? एज यू नो, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज देयर आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अगर आपका प्रॉफिट घट गया है तो बहुत सारा क्वेश्चंस आता है माइंड में, जो मैनेजमेंट है आपको छोड़ेगा नहीं। तो प्रॉफिट घटने का दो ही इलाज है, आइदर सेल्स मार्केट में घट गया होगा या कॉस्ट जो है मार्केट में, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ गया होगा। अगर सेल्स घट गया है तो किसको हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे? सेल्स डिपार्टमेंट को। भाई क्यों घटा, क्या कारण है, ये डिटेल आंसर देगा सेल्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो भी चांसेस है प्रॉफिट घटने का। अगर यहाँ लेकिन दुविधा है, अगर कॉस्ट घट रहा है या बढ़ रहा है तो कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? पहला बात है कॉस्ट का, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मटेरियल बढ़ गया है क्या? लेबर ज्यादा हो गया क्या? ओवरहेड ज्यादा हो गया? ऑल आर पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ कहीं गड़बड़ है, आइदर मटेरियल ज्यादा हो गया होगा या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गया होगा या फिर ओवरहेड बढ़ गया होगा, जिसके कारण हम लोग का जो कॉस्ट है बढ़ गया और प्रॉफिट घट गया। अभी मटेरियल में भी दो बातें आ रहा है, मटेरियल क्वांटिटी और प्राइस, ये दो बात है। मटेरियल का क्वांटिटी बढ़ गया क्या? क्वांटिटी बढ़ेगा या मटेरियल का प्राइस बढ़ गया क्या? जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा हो गया क्या? सो अगर हम मटेरियल का बात करते हैं तो क्वांटिटी और प्राइस दो बात आता है, और एक बात आता है दोनों के बीच में कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई टू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। सो मटेरियल को भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा हो गया क्या यूज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, प्राइस ज्यादा हो गया क्या मार्केट में, बहुत सवाल आता है। तो मटेरियल किसके साथ रिलेटेड है? मटेरियल इज रिलेटेड टू द परचेज डिपार्टमेंट, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी विल फिक्स टू द परचेज डिपार्टमेंट। हम लोग आगे बात करेंगे। देन कम्स टू योर लेबर। लेबर ज्यादा हो गया क्या रेट? आइडियल टाइम ज्यादा हो गया क्या? इन केस ऑफ लेबर हु इज रेस्पॉन्सिबल, टू whom responsibility is given? To the engineering department. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारा बात आता है वहां। और ओवरहेड बोलने से तो आप लोगों को मालूम है वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, ये दो
क्लियर बाय पॉइंट। जब कॉस्ट का बात आता है तो ये सारा चीज आता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल में हम बात करते हैं क्वांटिटी का, देन प्राइस का, देन टोटल कॉस्ट का क्या इफेक्ट है। लेबर में उसी तरह एफिशिएंसी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो ये चीज अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो होगा कैसे? इसीलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स अप किया जाए, दैट्स व्हाई ए स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड। इसीलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स अप होता है। मैं इस चीज को आप लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन का पास मार्क कितना है? 33%। अगर आप हर सब्जेक्ट में 33% लाते हैं तो आप फिर पास हो जाते। लेकिन अगर आप सीए एग्जाम देने जाते हो, सीए एग्जाम में पास मार्क कितना है? 50% पास मार्क है सीए एग्जाम में, 50%। क्लियर है पॉइंट? मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो तो मान लीजिए पास मार्क चाहिए 50%। दैट मींस दिस स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूशन और दिस स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड बाय वेरियस इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है। मान लीजिए मैं एक कोचिंग सेंटर दिया हूं और कोचिंग सेंटर में मैं रखा हूं 70% मार्क। जो जिसका 70% मार्क होगा मैं उसको मेरा कोचिंग सेंटर में दाखला दूंगा। क्लियर है पॉइंट? और जिसका 70% आया है दाखला दूंगा। दैट मींस myself fixed a standard that is 70%. Clear my point? Like this, various institutions create various standard of pass mark, 33% in each paper, 50% and 40%, but my standard is 70%. Clear my point? Now, suppose A, B, C, मैं इन लोग का D, इन लोग का स्टैंडर्ड देखना चाहता हूं। जब मैं स्टैंडर्ड देखना चाहूंगा तो मेरे को ऐसे थोड़ी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मेरे को एग्जाम करवाना पड़ेगा ना? नहीं। जब मैं एग्जाम करवाता हूं, ये लाया 85%, ये लाया 45%, ये लाया 65%, ये लाया 75%। जब मैं उसको एग्जामिन किया, एनालाइज किया इसका मार्क को, देखिए मेरा स्टैंडर्ड है 70, लेकिन ए कितना मार्क लाया? 85। मतलब ये बेहतर है। जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये सबसे बेहतर है, मैं खुश, मेरा खुशी होगा उस चीज में। लेकिन जब इसका 45% मार्क आया, जबकि मैं स्टैंडर्ड फिक्स किया हूं 70, इसका 45% मार्क आया, मतलब ये स्टैंडर्ड से पूरा नीचे है। तो ये मेरे को डिस्करेज कर रहा है नहीं? ये 65% वाला भी डिस्करेज कर रहा है, जबकि मेरा स्टैंडर्ड है 70। ये 75% वाला मेरे को थोड़ा एनकरेज किया नहीं? अब मैं जब इसको एनालिसिस करूंगा, जब इस चीज को मैं एनालिसिस करूंगा, मैं किसी को मोटिवेशन दे पाऊं नहीं क्या? मैं जब उसका हालत नहीं जानता हूं एक्चुअल में कितना लाया है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल मार्क है, ये दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मार्क एंड दिस इज योर एक्चुअल मार्क। जब मैं एनालिसिस करता हूं तो दो चीज को देखते हुए मार्क करता हूं। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? स्टैंडर्ड मार्क से एक्चुअल मार्क को मैं कंपेयर कर रहा हूं।
मैं कितना स्टैंडर्ड दिया था और एक्चुअली कितना लाया है, ये दोनों को जब कंपेयर करता हूं तो किसी में मैं खुशी, मेरा खुशी होता है, किसी में भी मैं दुख होता। क्लियर है? तो इस चीज में हेल्प करता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कभी भी इक्वल नहीं होता है, डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में बी मोर देन द स्टैंडर्ड और एक्चुअल में बी लेस देन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से नीचे भी हो सकता है, स्टैंडर्ड से ऊपर भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दिस स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड बाय each and every company, each and every company according to their own policy and decision, and that will be compared with the actual achievement. That means standard and actual achievement is compared. This may be negative one, this may be positive one. है नहीं? अगर जब हम स्टैंडर्ड को standard will compare with the actual, this may be negative one or this may be positive one. Negative one is called adverse, that is called A, that is called adverse or A। मतलब जो 85 लाया है, if standard is more than the actual, the negative is called adverse, but the positive is called favorable, उसको F बोलते हैं। So in this case he will compare the adverse position, that is minus position, or favorable position. How it is possible? Through your analysis, through your analysis। Clear my point? अच्छा, another important factor is there in case of standard costing. Standard, no doubt, it is fixed by the company according to their own policy, and this standard is given to the production department, that is purchase department. Everybody is fixed with a standard. Clear my point? And that will be compared with the actual achievement. Actual achievement. But for the fixation of standard, जब हम standard निकालते हैं, कौन सा standard fixed up करेंगे? There are four methods of fixation of the standard theoretically. Method of fixation of standard. तो आप लोग को समझ में आ गया व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड बाय द कंपनी according to its own policy, and that will be compared, and all are related to the profit. Remember, एक बात आपको हर टाइम याद रखना पड़ेगा, ये सारा प्रॉफिट का खेल है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्रॉफिट रिलेटेड टू सेल्स and your cost, and your standard costing, it is a part of cost control. So how you will control the cost? Cost means material, labor and overhead। इसमें बहुत बातें हैं। अगर कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया क्या? अगर मटेरियल बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा कि प्राइस बढ़ा? लेबर बढ़ा, लेबर कॉस्ट क्यों बढ़ गया? क्या कारण है? ओवरहेड का क्या कारण है? सो हर किसी का एक स्टैंडर्ड होगा, मटेरियल का भी स्टैंडर्ड होगा, लेबर का भी स्टैंडर्ड होगा और ओवरहेड का भी स्टैंडर्ड होगा। इस स्टैंडर्ड के साथ हम लोग एक्चुअल को कंपेयर करेंगे थ्रू वेरिएंस, थ्रू योर वेरिएंस। सो टू फाइंड दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड जो कंपनी फिक्स अप करता है, देयर आर फोर मेथड्स of calculating standard. First one,
First one, core method, basic standard. Basic standard. Basic standard. First method is your basic standard. Second is your current standard. Current standard. Current standard. Clear my point? This is second one. And third one is your ideal standard. Ideal standard. That is your third one. Ideal standard. Fourth one is normal standard. Normal standard. Then expected standard. So these are the four ways to find out the standard. Clear my point? Standard actually meaning company will find the standard of their own, खुद का स्टैंडर्ड निकालता है और उसको एक्चुअल के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. तो व्हाट इज बेसिक स्टैंडर्ड? राइट डाउन basic standard. Please write down. Please write down basic standard. Basic standard is a standard. Basic standard is a standard which is established. Which is established by taking some base year, BAC base year, and remain in use for a long period of time. That means a particular year. Maybe you're starting of your business. Your starting year of business will be taken as a base year, and that will be carried forward. Maybe for 4 years, 5 years. That is for a long period of time. And the comparison is made. That is called your basic standard. That is called your basic standard. Clear my point? Secondly, write down current standard. Second, write down current standard. Current standard is a standard. Current standard is a standard which is established for a limited period of time. For a limited period of time, by taking current condition into the account. मतलब आज के डेट में, आज के पोजीशन में रॉ मटेरियल का प्राइस कितना भी मार्केट में मिल रहा है, लेबर मिनिमम वेज कितना दिया जा रहा है, ये सारा करंट पोजीशन को लेते हुए निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड योर करंट स्टैंडर्ड. हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बेस ईयर. ईच एंड एवरी ईयर यू विल टेक करंट पोजीशन and find out your own standard or set your own standard. Clear the point? Second comes to third one comes to ideal standard. Ideal standard.
लिखो आइडियल स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड which is based on perfect performance without making any allowances for unavoidable losses. Unavoidable losses means normal loss. You will find in case of production there are two types of losses as we have discussed: normal loss and abnormal loss. Normal loss you cannot avoid it. Such type of loss must be occur. But in case of abnormal loss, you will avoid it. But due to negligence of the dishonest employee, this type of loss is occurs. So we are related with the normal loss only. Normal loss means wastage, leakage, spoilage, etc. All are comes under your normal loss. Clear my point? Now, next comes to normal standard. Next comes to normal standard. लिखो आप लोग normal standard. Normal standard is a standard. Normal standard is a standard which is based on average performance in the past under normal condition, under your normal condition. Clear my point? Then comes to expected standard. Then comes to your expected standard. So please write down. Expected standard is a standard. Expected standard is a standard which is based on expected performance after making a reasonable allowances for unavoidable losses. Means for normal losses. Clear my point? So these are the basic to decide the four standard. Which one will be adopted, that depends upon the company. But company always fix a standard. Standard will be given under the normal working condition, that will be compared with the actual performance. Clear my point? So standard costing is nothing but it is a part of your cost control, and through cost control you can fix up the responsibility, and if there is, because sales cost order, that means here sales department is also take some responsibility, purchase department also take some responsibility, engineering department also take some responsibility, personal department also take some responsibility, administration department also. So in case of standard costing and budget, both are almost equal, but the difference is that in case of budget there is no question of fixation of responsibility. आप किसी को क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप इट इज
is a estimated cost, no doubt, but he will fix responsibility. अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप 10 सवाल कर सकते हैं, और जो लॉस कंपनी बियर कर रहा है वो लॉस भी हम एम्प्लॉई से ही सेटल करेंगे लेकर के, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिए हैं, नहीं तो फिर आपको बिजनेस से निकलना पड़ेगा। क्लियर माय पॉइंट? एक कठोर अगर नहीं होता है कोई चीज तो आपका अचीवमेंट, जो हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है, टू रियलाइज मोर प्रॉफिट, टू रियलाइज मोर प्रॉफिट। सॉरी, आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। अगर सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका आंसर ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पूरा अचीवमेंट होता है। विदाउट अचीवमेंट, विदाउट स्टैंडर्ड, it is very difficult to control it. Clear my point? आज के लिए यह स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। मैं फिर नेक्स्ट कल आऊंगा, आगे फिर इसको समझेंगे, लेकिन जितना समझे हैं थोड़ा किताब को पढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे दिया हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आपको फिर दोबारा समझा पाऊँ। और दूसरा बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करिए, ताकि आप लोग को मेरा वीडियो मिलता रहे। दूसरा, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो ये चीज़ जो वीडियो है आप दोस्तों में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।